नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर चल रही है। अभी तस्वीर साफ हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप ने बड़ी जीत का दावा कर दिया है। इस बीच आपको हम आंकड़े दिखाते हैं। जो रुझान अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक 213, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को जो आंकड़ा मिलता हुआ दिख रहा है वो 213 वोट है और 238 जो बाइडेन को। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि जो बाइडेन बाजी मारते हुए नजर आ रहे थे, फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it, to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट, दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी कहा है कि वो जीत की राह पर है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. If you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact,
since I saw that originally, it's been changed, and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that, obviously, to stay in play. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. Yes. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. और ये तस्वीरें आपको हम व्हाइट हाउस की रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर अभी यानी कि भारतीय समय के मुताबिक आप देखें तो इस वक्त वहां पर रात हो रहा है, लेकिन ये रात इतनी आसान भी नहीं है वहां के लोगों के लिए। हालांकि सड़कों पर हमने आपको दिखाया कि जश्न की तस्वीरें हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो भी सड़कों पर निकले हैं और एक तरफ जो बाइडेन के भी समर्थक निकले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर भले ही दिखने लगी हो, लेकिन भारत के लिए परिणामों से ज्यादा अहम दोनों देशों की दोस्ती है। जब रिपब्लिकन ने सत्ता संभाली तो भी, और जब डेमोक्रेट्स ने शासन किया तब भी, दोनों सूरत में हिंदुस्तान अपने दोस्त अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करता रहा है। Namaste. Namaste. A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार है हिंदुस्तान। तभी तो राष्ट्रपति पद के चुनावों में दिख रही है हिंदुस्तान की ताकत। वहाँ तिरंगे की शान कैसे बढ़ी है, कैसे वहाँ भारतीयों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी क्षमता साबित की है, ये बात इस चुनाव से साबित हो रही है। डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन पार्टी, दोनों का दाव भारतीय मूल को लेकर फोकस है। रिपब्लिकन की तरफ से अपनी दूसरी पारी के लिए दाव आजमा रहे ट्रंप ने भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर बता दिया कि उनकी नजर में भारत और भारतीय मूल के लोगों की कितनी अहमियत है। भारत का हमेशा अमेरिका से दोस्ती को और मजबूत करने पर जोर रहा है। व्हाइट हाउस में जिसने भी जिम्मेदारी संभाली है वो भारतीय नेतृत्व का मुरीद हुआ है। इस साल 24-25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा कौन भूल सकता है। And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. पिछले साल सितंबर में अमेरिकी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप का ये मेगा शो भी नहीं भुलाया जा सकता। Mr. President, you had introduced me to your family in 2017. And today, I have the honor to introduce you to my family. I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime
Minister Modi of India. Thank you. ट्रंप के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध और मजबूत हुए हैं, तो उससे पहले भी दोस्ती की डायरी में कई अहम पन्ने जुड़े हैं। बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी पूरे 8 साल तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे। अपनी दोनों ही पारियों में वो 2 बार भारत भी आए और बताया कि अमेरिका के लिए भारत की क्या अहमियत है। लेकिन इस बार के चुनाव के केंद्र में भारतीय समुदाय है। सबसे ज्यादा नजर डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को लेकर है। वो 2015 में सीनेटर चुनी गई थी। इस बार के चुनाव में आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मूल के वोटर्स की संख्या करीब 19 लाख है, जो कुल वोटर्स का करीब 1% है। कम संख्या होने के बावजूद भारतीय मूल के वोटर्स का असर ज्यादा है। इसी वजह से अमेरिका का ये चुनावी दंगल भारत के नजरिए से काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि वोटों की एक तरफ गिनती जारी है, लेकिन अपने अपने दावे कर चुके हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही बोल चुके हैं। संवाद के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया अमेरिका के तमाम उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, और बड़े जश्न की तैयारी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन, वो भी ये कह रहे हैं कि जश्न होगा और तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होगी। इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव खास करके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत में खासा उत्साह है। ट्रंप की जीत की कमान के लिए दिल्ली ही नहीं और भी कई जगहों पर पूजन हवन का आयोजन किया गया है। मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही हैं। ट्रंप की तस्वीर पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। ये दिल्ली के दिलशाद गार्डन की तस्वीर है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की जीत की कामना करते हुए यज्ञ और हवन किया। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है ताकि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को जीत में मदद कर, और इसीलिए जो हिंदू सेना है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इस हवन का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिका में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन भारत में और भारत के इस हिस्से में राजधानी दिल्ली में ट्रंप की जीत के लिए ये प्रार्थना इस मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना देती है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर भारत के साधु संतों में ऐसा उत्साह शायद ही कभी देखा गया होगा। हवन क्या है, भगवान की शरण में है डोनाल्ड ट्रंप, और हम शरण में लाए हैं। और जैसे हमने पिछली बार भगवान का आशीर्वाद उनको दिलाया और वो भारी बहुमत से विजयी हुए, इस बार फिर हमने भगवान का उनको आशीर्वाद दिलाया है, क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जरूरी है। इसलिए भगवान से कामना की है, यज्ञ देवता से कामना की है, उनको भारी बहुमत से विजयी बना। दिल्ली से दूर प्रयागराज में भी ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ हवन किया गया। संगम नगरी में बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत स्वामी आनंद गिरी ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हवन कर ट्रंप की जीत की कामना की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत के साथ बहुत गहन है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत करके आते हैं तो भारत निश्चित तौर पे विश्व स्तर पे बहुत मजबूत बनेगा। इसलिए आज हमने यहाँ बैठ करके प्रार्थना की है कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा विजयश्री दिलाए। दिल्ली से प्रयागराज तक ट्रंप के लिए दुआएं की जा रही हैं। उधर उड़ीसा के पुरी का समंदर किनारा भी अमेरिकी चुनाव के रंग से अछूता नहीं रहा। यहाँ के मशहूर गोल्डन बीच पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की कलाकृति बनाई। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है उसके लिए हमारा सैंड आर्ट के थ्रू ये बेस्ट विशेष है। अराउंड 5 टन्स ऑफ सैंड यूज हुआ है इस स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। स्पेशली इसमें हमने बोथ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उनके स्कल्पचर्स बनाए हैं। उसके बाद यूएस के जो नेशनल फ्लैग है उसको भी क्रिएट किए हैं। अब तक के रुझानों में ट्रंप बाइडेन से आगे हैं। नतीजों का औपचारिक ऐलान बाकी है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि ट्रंप समर्थकों की प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन नए राष्ट्रपति पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। खासतौर पर ईरान और कोरिया प्रायद्वीप के भविष्य की नीतियां इन नतीजों से काफी कुछ जुड़ी हुई हैं। उत्तर कोरिया और ईरान ये दुनिया के वो देश हैं जो सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, और वो भी अपने अपने परमाणु कार्यक्रमों की वजह से। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव इन दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के परमाणु समझौते को एक तरफा बताते हुए उससे अमेरिका को बाहर कर लिया था और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए थे, और तभी से दोनों देशों के बीच तकरार कायम है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में चुनाव के नतीजे जो भी आए वो अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे। तो वहीं उत्तर कोरिया भी सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ कई मुलाकातें तो की, लेकिन वो किसी समाधान तक नहीं पहुंच सके और दोनों नेताओं के बीच वार्ता बीच में ही खत्म हो गई, जिसके बाद से एक बार फिर दोनों देशों में तकरार बढ़ गई है। कोरियाई विशेषज्ञ अमेरिका चुनाव के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति के लिहाज से इन परिणामों का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है। इसीलिए उनका ये कहना है कि चुनाव चाहे जो जीते, इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने को वो प्रमुखता दे। आज तक ब्यूरो। इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव कई मायनों में अलग है। कोरोना की वजह से 10 करोड़ लोग पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। वहीं ट्रंप पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहली बार अमेरिका में चुनाव के बाद हिंसा की भी आशंका है। इन तमाम विवादों की वजह क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Time to stand up and take back our democracy. And I think we're going to have a tremendous victory. इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायने में पहले हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ ही उसने चुनाव के तौर तरीकों को भी काफी हद तक बदल दिया है। अमेरिका में कुल 24 करोड़ वोटर हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इनमें से 10 करोड़ वोटर चुनाव से पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए या फिर खुद जाकर वोट डाल चुके हैं। उन्होंने ऐसा कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए किया, लेकिन इन करोड़ों वोटों की गिनती आसान नहीं होगी। हो सकता है चुनाव वाले दिन विजेता का पता ना लगे। चुनाव कौन जीता है ये पता लगाने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर मेल इन वोटिंग हुई है, यानी डाक के जरिए लोगों ने वोट किया है कोविड की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित एक तरीका है वोट करने का। इन करोड़ों वोटों की गिनती के चलते जो फैसला एक रात में हुआ करता था, इस बार उसमें कई दिन लग सकते हैं। यही नहीं, ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर रही और ट्रंप हार गए तो हो सकता है कि वो नतीजों को मानने से ही इनकार कर दें। ट्रंप पहले ही डाक वाले वोटों पर शक जता चुके हैं और कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि वो अपनी हार का नतीजा स्वीकार कर लें। I think it's a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it's a terrible thing when people or states are allowed to tabulate ballots for a long period of time after the election is over, because it can only lead to one thing, and that's very bad. You know what that thing is. I think it's a very dangerous, terrible thing. अगर ट्रंप अड़ गए तो फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना की वजह से पोस्टल बैलेट की इजाजत दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा बेहद सख्त है और दुकानों को हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट से बचाने के लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। दुकानों में लगी कांच को दीवार के बाहर लकड़ी के तख्तों से ढका जा रहा है ताकि चुनाव के दौरान या उसके बाद हिंसा भड़के तो दुकानों को बचाया जा सके।
इस बार हिंसा और आशंका की इतनी संभावना है कि अमेरिका के सभी बड़े शहरों में जो दुकानें हैं, जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपनी जो कांच की खिड़कियां हैं या कांच के दरवाजे हैं, उन सबको एक हार्ड कवरिंग से उस पे चढ़ा दिया है, ताकि अगर दंगे हों तो कोई भी लोग अंदर आके दुकानें ना लूट सके। दरअसल इस बार अमेरिका में नस्ल भेद के मामलों को लेकर कई दंगे हुए। डर है कि चुनाव नतीजों के बाद फिर से ऐसे ही दंगे न भड़क जाएं। नई दिल्ली में गीता मोहन के साथ प्रतीक्षा घिल्डियाल, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।